class. Today I am going to teach about the subject Economics, class 11, chapter 1st, part 3rd. Today we will study about the agriculture sector on the eve of independence. There is the following features of the agriculture sector. First is the land tenure system. The stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various system of the land settlement that was introduced by the colonial government, particularly under the zamindar system. The profit acquiring out of the agriculture sector went to zamindar instead of the cultivator. The zamindar did nothing to improve the condition of agriculture. Their main interest was only collect rent regardless to the economic condition of the कल्टिवेटर्स. उस टाइम पर जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी दैट इज़ अ ब्रिटिश एंड हु वाज ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लैंड टेन्योर सिस्टम, वी कैन से दैट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एंड जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग तरह की थी. तो दे वाज सेट अप 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू system. First is a zamindari system, second is a rotwari system, and third is a mahalwari system. All this system they want to get only the revenue from the farmers. So we will explain about the zamindari system in this picture very well. Zamindari system can be understand with 3 persons. In this picture there is 3 person. First is a British, second is a zamindar, and third is a farmer. First person called that I am a British government, I want fixed land revenue. Second person, I am a zamindar, owner of the soil, I want maximum output from the tiller of the soil. And third is I am farmer, the actual cultivator, but do not have their resources for survival. जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, 3 पर्सन तीन इस लेवल पे होता था. पहला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो हमारे ज़मींदार से, जो ज़मींदार थे उनसे फिक्स्ड रेवेन्यू लेती थी. ठीक. और ज़मींदार जो थे वो जो थे हमारे फार्मर से क्या करते थे, एक मैक्सिमम आउटपुट लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मैक्सिमम जो भी वो बोते थे, जो भी वो क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे, उन सारे क्रॉप्स को वो जो है मैक्सिमम वो ले लेते थे. तो इससे हमारे जो मेन फार्मर्स थे वो एक्चुअल कल्टीवेटर होते हुए भी उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी टू सर्वाइव करना, अपने लाइफ को सर्वाइव करना. तो ज़मींदारी सिस्टम जो थे 3 लेवल पर. पहला फार्मर्स जिन्होंने फिक्स अपना रेवेन्यू फिक्स कर दिया था ज़मींदार से, और ज़मींदार जो थे उनको फिक्स रेवेन्यू देने के बाद जो है वो फार्मर्स से जितना भी होता था वो सारी चीज़ ले लेते थे और अपनी एक लग्जरी लाइफ एक्सपेंड करते थे वो लोग. और फार्मर्स जो रियली जिसने बहुत मेहनत किया, जिसने कल्टीवेट किया क्रॉप्स को, उसी के पास क्रॉप नहीं होता था, उसी की लाइफ जो थी उसको लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत वो परेशानी होती थी. तो लैंड टेन्योर सिस्टम जो था वो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के थ्रू सेटअप किया गया, और हम लोग इसको बहुत अच्छे से इन दिस पिक्चर कैन अंडरस्टैंड all the zamindari system, all the information about the zamindari system. Second point is a low level of technology. At that time the low level of technology, lack of irrigation facilities, negligible use of fertilizer etc. जब किसी भी कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत ही लो होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब सिंचाई की जो भी फैसिलिटीज़ होगी उसमें बहुत कमी होगी, और निग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, एकदम जो फर्टिलाइज़र का जो यूज़ था वो बहुत ही निग्लिजिबल, ना के बराबर. तो इट इफ़ेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, जो हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत ही डाउन हो गई.
तो lowered down the productivity of land. What is a productivity? Productivity means the capacity of the crop by per hectare. पर हेक्टर उस क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी होती थी, जो कैपेसिटी होती थी, वो कम होती थी. क्यों कम होती थी? फर्स्ट रीज़न इज दैट टेक्नोलॉजी was not available, irrigation facilities was not available, and use of fertilizer was negligible at that time. Third point is, that is also very important, commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture means producing crops for sale in the market rather than for the self-consumption. Farmer was forced to cultivate commercial crop like indigo, which was required by the textile industries in Britain for dyeing of the textile. हम इसको समझ सकते हैं कि उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर का मेन जो पर्पस था कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर, वो सिर्फ प्रोड्यूसिंग क्रॉप फॉर द सेल इन द मार्केट. सिर्फ क्रॉप को प्रोड्यूस इसलिए करवाते थे कि वो सेल मार्केट में सेल हो सके, ना कि फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन. ये नहीं कि अपने खुद के कंजम्पशन के लिए या फार्मर्स के लिए वो कुछ करते थे. नहीं, वो उस क्रॉप को कल्टीवेट करवाते थे जो कि एज अ रॉ मटेरियल्स जो था उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम आ सके. तो फार्मर को फोर्स किया जाता था टू कल्टीवेट कमर्शियल क्रॉप्स को कल्टीवेट करें, जैसे इंडिगो, जो कि विच वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन फॉर डाइनिंग द टेक्सटाइल. जो उस टाइम पर इंडिगो को बहुत ज़्यादा वो लोग रिक्वायर करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में. वो कहाँ पे थी? ब्रिटेन में. तो यही सारे रीजंस थे कि फार्मर्स एट दैट टाइम कैन नॉट कल्टिवेटेड विच क्रॉप वॉज नीडेड फॉर द सर्वाइव ऑफ द लाइफ. वो लोग सिर्फ अपने रॉ मटेरियल्स के लिए काम करवाते थे. इंडियन एग्रीकल्चर वॉज ट्रांसफर इनटू द रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग सेक्टर फॉर इंग्लैंड. तो जितनी भी इंडियन एग्रीकल्चर थी वो ट्रांसफ़र कर दिया गया इनटू द रॉ मटेरियल्स में. रॉ मटेरियल मतलब जो एज अ रॉ मटेरियल के लिए काम करता था, जो एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ फॉर इंग्लैंड के एक्सपोर्ट सेक्टर्स में. तो आई थिंक दिस पॉइंट विल बी क्लियर. फोर्थ पार्ट इज द पार्टीशन ऑफ कंट्री. Partition of the country in 1947 adversely affected in Indians' agriculture production. The rich food production area was West Punjab and Sindh went to the Pakistan. It is created scarcity of food in India. The jute production area went to the East Pakistan, now Bangladesh. The jute industry was most adversely affected due to the partition of the country. जब हमारी कंट्री 1947 में पार्टीशन हुआ तो उसका एडवर्सली इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे पड़ा. द रिच फूड प्रोडक्शन, जो सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन में रिच था, वो एरिया था वेस्ट पंजाब एंड सिंध, जो कि अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है. तो इट क्रिएटेड स्क्रैसिटी इन फूड इन इंडिया. तो ये चीज़ जब हमारे पाकिस्तान में चली गई तो एक कमी हमारे क्रिएट हो गई फूड की इंडिया में. द जूट प्रोडक्शन आल्सो वेंट टू द ईस्ट पाकिस्तान. जो जूट प्रोडक्शन के लिए था वो ईस्ट पाकिस्तान, जो नाउ बांग्लादेश है आज, जो बांग्लादेश में चला गया जूट प्रोडक्शन. तो जूट इंडस्ट्री तो उससे हमारी क्या हुई? जूट इंडस्ट्री भी अफेक्टेड हुई. मतलब कि क्रॉप में जो कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान चला गया, जैसे हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पर स्क्रैसिटी आई, और जो जूट प्रोडक्शन थी वो हमारी चली गई बांग्लादेश में. तो उससे जो है हमारा जूट के प्रोडक्शन में स्क्रैसिटी आई. ये हमारे जो पार्टीशन हुआ उसका एडवर्सली इफेक्ट हुआ. I think all the point will be clear. If you have any doubt in any point, you can ask me. Thank you, class.